डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਲੈਕਚਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ डाइपोल इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पढ़िया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ है इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल। लेट दिस इज द डाइपोल। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। इट्स लेंथ इज 2L। L इस तरफ, L इस तरफ। This is the axial point, this is the equatorial point. Okay, now we have to find electric field at any point. Let we draw a dipole. ਅਸੀਂ ਇੱਕ dipole ਦੀ figure ਬਣਾਉਣੇ ਆ। Let AB is the dipole of length 2L. L length is तरफ, L length is तरफ. Okay, and P be the point where we have to find the electric field. P ਇਹ point ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ AB डाइपोल ਕਰਕੇ electric field find out ਕਰਨੀ। डाइपोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ at point A negative Q charge, at point B plus Q charge. Okay, let the line joining the OP, that is the distance of the point from the dipole is R डिस्टेंस होगी इसकी। तो हुण असीं इस पॉइंट का इलैक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल किद्दां फाइंड आउट करांगे। ओके, तो इत्थे हुण असीं एक दो गल्लां डाइपोल दे जिहड़े पैरामीटर ने वो देखांगे। लेट P small p vector is the electric dipole moment, is the electric dipole moment of the किसकी मूवमेंट है? डाइपोल ऑफ द डाइपोल AB डाइपोल दी जो इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है दैट इज P वेक्टर। ओके, हुण सानू इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करन दे लई की करना पएगा? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? we will resolve the dipole into two components. ਅਸੀਂ डाइपोल ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। one component of the dipole is along the OP, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ along OP ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚਾਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। let this be the A1 and B1 and one component perpendicular to this, एक component इसके perpendicular है that is A2 and B2। एक component है A2 and B2। now this angle is theta, the angle which OP makes with the dipole is the theta। if this angle is the theta, then dipole moment of A1 V1 is A1 V1 the dipole moment कितनी होएगी? then dipole moment of A1 V1 is because it is along the OP is P cos theta, P होएगी P cos theta and same of that is dipole moment of A2 B2 component of the dipole। ਜਿਹੜਾ dipole ਦਾ component ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ इसकी dipole moment कितनी होएगी? P sin theta। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ dipole moment ਹੈ main dipole the P vector, dipole moment of the components that we have resolved A1 B1 is P cos theta, the dipole moment of A2 B2 is P sin theta। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹਨ -Q, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ +Q, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ -Q, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ +Q। that is direction of the this dipole is this, direction of the this dipole is this। okay,
हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो फिगर वल, फिगर नूं वेखो तां P point is on the equatorial line of the dipole A2 B2 and axial line of the dipole A1 B1। तां असीं लिखांगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to dipole A1 V1 is, एक गल मैं लिखदा नहीं, असी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कटांगे। क्यों कटांगे भी मैग्नीट्यूड? बिकॉज मेन डाइपोल इज AB, असी ऑलरेडी कंपोनेंट बना लेते, सो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग वेक्टर क्वांटिटी वी विल राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E A1 B1। इत्थे असी एक्सियल भी लिख सकते सी, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी इज K मीन 1/4 pi epsilon naught K 2P। मैं P नहीं कला लिख सकता बिकॉज P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ AB। असी A1 B1 की गल करते हैं, इसकी जिहड़ी डाइपोल मोमेंट है दैट इज cos थीटा 2P cos थीटा divided by R³ along PK, along PK, along PK, okay? And similarly electric field intensity due to dipole A2 B2। एक गल मैं तुहानू दस रहा, P point is on the equatorial line of A2 B2। इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुहानू पता ये है E A2 B2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू K इक्वल P वेक्टर बाय R³ बारसी लिखांगे P sin थीटा, क्योंकि इसकी जिहड़ी डाइपोल मोमेंट है वो P sin थीटा है, P sin थीटा बाई R³। ये किधर होगी बेटा? ये आपां ने पहला पिछली वीडियो च डिस्कस किया होया। अगर साडा डाइपोल ए है तां इहदी इक्वेटोरियल लाइन ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पासे नूं हुंदी है, डाइपोल मोमेंट इस पासे नूं, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच एंगल जिहड़ा 180 डिग्री हुंदा अगर इक्वेटोरियल लाइन ते देख ले, ठीक है ना? मीन टू से इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हैगी आ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किहड़ी होएगी अलोंग, इत्थे असीं कोई होर लिख देंगे PK अलोंग PN लिख देंगे आ, अलोंग PN, ओके? नाउ we have divided the dipole into, we have resolved the dipole into two components A1 B1 and A2 B2। असी A1 B1 करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेती, असी A2 B2 करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेती। The two intensities are perpendicular to each other because components are perpendicular। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वो, ठीक है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P is E vector is equal to, फार्मूला लगावांगे to find the resultant of the two vectors when they are at some angle, two vectors are at 90 degree point, so under root first vector square plus second vector square plus 2 into first vector into second vector into cos 90 into 0, that is E A1 B1 magnitude square plus E A2 B2 magnitude square, okay? ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਪੁੱਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ
शॉर्टकट मारांगा की शॉर्टकट मारांगा इस दे विच भी के है इस दे विच भी के है तो असीं लिखांगे के स्क्वायर इत्थे कॉमन ले लांगे ठीक है के स्क्वायर कॉमन लवांगे तो असीं कॉमन लैन दी बजाय इसनूं बाहर ले लांगे के ओके के स्क्वायर तो स्क्वायर लिखना ते आर क्यूब स्क्वायर रूट च लेना असीं रूट च नहीं लवांगे आर क्यूब नूं भी असीं बाहर ले लांगे ते ब्रैकेट की रह गया एक पासे रह गया 2p cos थीटा स्क्वायर प्लस p sin थीटा स्क्वायर ओके इक्वल टू के वाई आर क्यूब कॉमन रूट दे विच की रह गया बेटा 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा असीं p स्क्वायर एंड p स्क्वायर भी कॉमन ले लवांगे सो p स्क्वायर का बाहर कॉमन आएगा ओनली p ते इन ब्रैकेट ओनली 4 cos स्क्वायर थीटा एंड ओनली sin स्क्वायर थीटा इत्थे तक गल नूं समझो अगर तुसी वीडियो देख के नाल नोट कर रहे हो तो तुसी नोट भी कर सकते हो ते इस तो मैं अगे लिखदा अगर तुसी ब्रैकेट दे विच ध्यान नाल वेखो ब्रैकेट दे बाहर रह गया kp के की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके मैनू थोड़ा जा इथों मैनू स्पेस थोड़ी जी लेनी पैगी मैं इथों जड़ियां फर्स्ट लाइन ज्योमेट्री के बाकी दा जिहड़ा रिजल्ट है वो मैं आ जगह ते लिखदा नाउ द रिजल्ट बिकम्स की रिजल्ट आ गया साडे कोले जिहड़ा रिजल्ट आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to you can write like this मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी नो हमेशा इदां लिखदे आ इक्वल टू k मैं k दी वैल्यू लिख देने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है p by r क्यूब रूट दे विच थोड़ा बेटा ध्यान दियो रूट दे विच की हो गया रूट दे विच ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर मैं 4 cos स्क्वायर थीटा दे विच एक cos स्क्वायर थीटा उदाहरण ले लवां ठीक है ना वो दैट cos स्क्वायर थीटा आई विल ऐड टू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओके ता 4 cos स्क्वायर थीटा तो 1 cos स्क्वायर थीटा सी ले लेता 3 cos square theta plus 1 this is the electric field at any point due to electric dipole okay ਤੇ बेटा मैं थोड़ा फास्ट ਚੱਲਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ फार्मूला थोड़ा जा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखना पवे ना तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू कैन राइट k ओनली एट लास्ट ਅਸੀਂ वैल्यू ਉਹਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਦਾ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੀਟਾ ਬਿਕਮਸ 90 डिग्री ਇੱਥੇ 90 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ cos 90 0 ब्रैकेट टर्म 0 होगी cos 90 कितना हो गया 0 हो गया ब्रैकेट दे विच 3 cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p by r क्यूब बिल्कुल सेम हो जाएगी जिदा इक्वेटोरियल पॉइंट पे होंदी है इसे फार्मूले तो इफ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन थीटा बिकम्स 0 अगर इथे ਅਸੀਂ 0 पुट करांगे दिस बिकम्स 1 3 plus 1 4 ਦਾ रूट लावांगे तो 2 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਲੈਕਚਰ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ electric field on equatorial line and electric field at
एनी पॉइंट डिस्कस कर लेता असी फाइंड आउट करते हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। अगर असी विक्टोरियल लाइन ते करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस इज अलोंग पी एक्स, दिस इज अलोंग पी, इत्थे की लिख दिया मैं एक्स डैश लिख देना। अगर असी साडा जिहड़ा पॉइंट है वो डाइपोल दे एक्सियल लाइन तो इक्वेटोरियल लाइन तक घूमदा है तो जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 180 डिग्री चली जाती है। ठीक है ना। अगर इत्थों फिर असी डाइपोल मोमेंट इत्थे वेखीए, अगर साडा डाइपोल मोमेंट देखण दा मन इत्थे बन गया भी असी डाइपोल मोमेंट इस पॉइंट ते देखनी है ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਦਰ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 180 ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਕਿਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, कितना घूमया होएगा असि पढ़िया टेनी पॉइंट इत्थे चला गया एक्सियल पॉइंट। अगले पॉइंट ते इत्थों हुण मेरा हथ नहीं घूमेगा बेटा, हाथ मेरा फिर तुहानूं पता टुट जाएगा ते मैं दूसरे हाथ की हेल्प ले लेना। इत्थों ये घूमदा घूमदा फिर इत्थे आ गया, ठीक है ना। इत्थों अगर इत्थे डाइपोल मोमेंट देखिए इत्थों फिर ये किवें घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है इत्थों रोटेट करके डाइपोल फिर इधर हो जाऊगा 180। इत्थों उत्थे जाके फिर डाइपोल मोमेंट जिहड़ी हैगी फिर 180 घूम जाएगी। ये मैं तुहानूं आईआईटी या नीट लेवल का क्वेश्चन दस्सिया। समटाइम्स कोई क्वेश्चन दे दें तुहानूं ओनली फिगर दे दें भी इत्थे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की होएगी, इत्थे की होएगी, इत्थे की होएगी, इत्थे की होएगी, यू कैन ईजिली जज। और जनरल क्वेश्चन व्हाट विल बी द angle between the dipole moment and electric field here 0 degree. What will be the angle between dipole moment and electric field 180 degree. Dipole moment is direction so idhar no. What is the angle between the dipole moment and electric field again 0 degree, again 180 degree, again 0 degree. So this is the question, this is the question, okay beta। now साडा last article जिहड़ा हैगा last article वो करते हैं। now बेटा लास्ट आर्टिकल है डाइपोल नाल रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, लेट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ये असी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता, इसलिए मैं डायरेक्शन ए बनाई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी। इट मीन जिथे पॉजिटिव चार्ज होएगा किते इधर किते नेगेटिव चार्ज होएगा, इधर नेगेटिव चार्ज होएगा इधर पॉजिटिव चार्ज होएगा। A dipole is placed in this electric field, a dipole AB of length 2L, AB of length 2L is placed in this dipole making angle theta with the electric field। electric field ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ theta angle ਬਣਾ at point A minus q charge, at point B plus q charge, इत्थे plus q charge। you already know that ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ the two charges of the dipole experience force when these are placed in electric field। the plus q charge, force on this plus q charge will be in this direction and force on minus q charge in this direction। what will be the magnitude of force? force का magnitude की होएगा F vector equal to Q because magnitude same है into E vector, ठीक है ना। along the direction of electric field equal to कितनी होगी the force on the charge A, the force on the charge plus Q at B is Q E vector कितनी होएगी along E vector and force on the charge
एट ए कितनी होएगी एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। दिस माइनस इज नॉट मैथमेटिकल माइनस, यह वेक्टर दी डायरेक्शन उल्ट दस रही है। इत्थे असीं नाल लिखांगे इन द डायरेक्शन opposite to e वेक्टर दे opposite डायरेक्शन आ। इत्थे मैं एक गल दस देवां, जे मैं ये गल लिख दित्ती तो मैनूं इत्थे माइनस पाउण दी जरूरत नहीं। अगर तुसीं ये नहीं लिखना फिर तुसीं इत्थे नेगेटिव पा सकदे। नाउ the dipole is under the action of two equal and two unlike parallel forces। दो फोर्सेस ने पैरेलल ने, जिदा हम मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिना, मैं एक पेन देख रहा, मैंने एक पेन पकड़ाना बेटा, ओके। जिदा डाइपोल है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इस रूम दे विच इस दीवार ते इस दीवार च इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन च ने। डाइपोल दी अलाइनमेंट ये है दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा, ओके। ता डाइपोल दे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। मैं थोड़ा ज्यादा कलर डार्क होने करके मैं कलर्ड ले लेना। दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। इत्थे फोर्स किधर लगी इस डायरेक्शन च, इत्थे फोर्स किधर लगी इस डायरेक्शन च। टू फोर्सेस आर अनलाइक, ओके, अलग अलग पॉइंट्स ते लगदियां ने, इक्वल ने, acting at different points। when two parallel forces acting at different point on a body, तो बेटा की हो जाता, तो बॉडी की हो जाती है, this will give rise to torque। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, बॉडी ਤੇ टॉर्क लगदा, बॉडी ਤੇ ਕੀ लगदा, टॉर्क लगदा बॉडी ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क मैं ਇੱਥੇ थोड़ी जगह ला लेना। The magnitude of the torque is the magnitude of torque is tau is equal to। इत्थे तुसी फिर मैंने एक गल पूछोगे सर वेक्टर तो नहीं पाउंदे, नहीं हाले वेक्टर नहीं पाउंदे, इधर फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर distance between the forces। what is the perpendicular distance, a force होगी, a force होगी, so this is the perpendicular distance between the force an, okay। ता इत्थे बेटा होना tau is equal to either force कितनी होगी q e, either force कितनी होगी q into e into distance an। to find an, see from this triangle ABN। ABN triangle ते देखो बेटा, ABN triangle तो अगर तुसी देखोगे ता what is AN, इतने बड़ी कॉम्प्लिकेसी जी थोड़ी खड़ी होंदी है। what is AN, AN की है, AN परपेंडिकुलर है या बेस है, ये थीटा इतने है, the corresponding angle between the two perpendiculars, if this is theta then this becomes the theta। तुसी पैरेलल लाइंस तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो, छोटियां क्लासां च पढ़िया होया। थीटा के सामने की होएगा परपेंडिकुलर। टू फाइंड an मैं थोड़ी डिटेल दस देना। टू फाइंड an फ्रॉम triangle ABN, AN over AB equal to sin theta, AN equal to AB sin theta, AB mean 2L sin theta, AN equal to किधे बराबर हो गया 2L sin theta। then from one torque is equal to किधे बराबर होगा QE into 2L sin theta।
एडजस्ट करके लिखो बेटा E ब्रैकेट विच लिखांगे Q इंटू 12 ब्रैकेट 1 साइन थीटा। ध्यान दिओ मैं Q नूं 12 दे नाल लिख लैता बिकॉज Q इंटू 12 की हो गया P डाइपोल मोमेंट। असी पहला तो ही पता है, असी इनू थोड़ा सही करके लिख लेना, मैं इसनू अगे लिख लेंदा Q इंटू 12 अगे लिख लेंदे हां E sin theta। This becomes torque is equal to P E sin theta। Now we will write like this, torque vector is equal to P vector cross E vector। Torque vector is equal to P vector cross E vector। So this is the torque which experience dipole in the uniform electric field, not in a non-uniform, only in uniform electric field। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਟ देयर इज नेट टॉर्क। नेट फोर्स 0 होएगी, नेट टॉर्क होएगा। ਤੇ ਵੈਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਕ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਤੇ 90 ਤੇ ਹੋਏਗਾ then net force is again 0 but net torque is maximum। okay, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਟਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ, ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਰਸਸ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨੈਟ टॉर्क भी लगेगी। this is about the net torque experienced by dipole when placed in an electric field। now students ਤੁਸੀਂ डाइपोल ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। डाइपोल ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। तो जो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम तो आप डिस्प्लेस करते हैं थ्रू एंगल थीटा, ठीक है ना, तो फिर वो कोशिश करता इट टेंड्स टू रीगेन इट्स स्टेबल पोजीशन, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच फिर आना चाहता। तो डाइपोल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जे जो डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड दे 180 डिग्री ते रख दीए, मीन टू से जिवें मैं फिगर च दिखाया होया ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होएगा जोड़ा वो होएगा PE ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। इन्हों मैं लिखांगा नहीं हुण क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है बेटा, तो तुहानूं देखनी भी औखी है। तो मैं एक दो पॉइंट ने जो स्टेबल इक्विलिब्रियम च है तो टॉर्क कितना 0, जो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम च है तो टॉर्क कितना होएगा 0। मैं फिर अपना वो लैंदा हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तुसी रूम दे विच इदां मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस। तो टॉर्क कितना है, तो टॉर्क कितना है 0 है, टॉर्क इज इक्वल टू 0। ते फोर्स कितनी है, फोर्स भी 0 होएगी। ओके, ते जदों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम च है तो उदों की है टॉर्क मैक्सिमम। स्टूडेंट्स डाइपोल बारे तुसी समझ चुके होवोगे। हुण जिहड़ी नैक्सट वीडियो है तुसी मेरे एक्सपेरीमेंट्स की वेट करते होवोगे, तो हुण जिहड़ियां नैक्सट वीडियोज़ होणगियां वो विद एक्टिविटीज़ ते विद डेमोन्स्ट्रेशन च होणगियां। ओके, हैव ए नाइस डे।